Hello students, I am back with your computer class. This is your computer class. So students, हमने क्या किया था, मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट के अंदर टेबल्स बनाने सिखाए थे. आई टोल्ड यू अबाउट क्रिएटिंग टेबल्स. सो हमने टेबल्स क्रिएट करके देखे थे एंड येस्टरडे आई टोल्ड यू कि हमारा एक टॉपिक उसके अंदर सिर्फ लेफ्ट है एंड दैट इज़ हाउ वी कैन यूज़ फार्मूला. हम फार्मूला यूज़ करना आज सीखेंगे. दैट आई विल टेल यू टुडे. And question answers, obviously I'll be sending you by tomorrow. You can write it in your notebooks. If you feel any kind of problem, you can call me, contact me, WhatsApp me, ask me ki ma'am this is the problem. I will reply to you. And till the time I'll explain you how you can use calculation, how you can do calculation in Microsoft Word. So it will help you कि आप कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में. And students, because your vacations are going to start, we are not going to start a new chapter. We will be winding up this, and after vacations we will start the new chapter. And in vacations, like, your homework is, obviously I am sending you the homework, but first of all you have to complete the written work which is pending. Complete it so that when we meet after vacations, your all work, like pending work, should be done till now. And obviously I'll miss you in vacations, but all the best for your vacations. Listen to your parents, listen to the teachers instructions which they are giving. Work on time, follow the good routine as you are following it now, ताकि आपके vacations जो हैं बहुत अच्छे से बीते. And all the best for your vacations. And now for practical work, be with me on my screen. Question answers I will be sending you. So students, as we have done tables, हमने अभी तक tables किए हैं. मैंने आपको tables की formatting करना और tables को color करना और ये सब कुछ सिखाया था. And I told you yesterday कि we will be doing last thing in this, that is how you can apply formula. हम formula कैसे apply कर सकते हैं, calculation कैसे कर सकते हैं इसके अंदर. So today we will be doing about how we can do the calculation in this. हम इसके अंदर calculation कैसे कर सकते हैं. So I am increasing the size so that it will be visible to you easily. So this is, I have increased the size of the table and text as well. So now it is clearly visible to you. So students, हमें अगर कैलकुलेशन करनी है, आई थिंक आई डोंट नीड टू टेल यू कि टेबल कैसे इंसर्ट करना है. यू कैन ईजिली इंसर्ट द टेबल नाउ. सो नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू कैलकुलेट द मार्क्स ऑफ आई हैव टू मेक अ टेबल टू कैलकुलेट द मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स और 2 स्टूडेंट्स. सो सबसे पहले मैं यहाँ क्या लिखूँगी, सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगी सीरियल नंबर एंड यहाँ पे 1, यहाँ पे आई हैव रिटन नीचे वाले सेल में 2. हेयर आई विल राइट डाउन नेम. फाइन. हेयर आई विल राइट डाउन हिंदी. नीड टू डिक्रीज द साइज so that it will fit in this easily. So this is serial number, this is your, I have written one subject, name, हिंदी के बाद I am writing English over there, and after that हिंदी के बाद इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स. नाउ अब 1 कॉलम आई नीडेड फॉर टोटल. मुझे टोटल के लिए भी एक कॉलम चाहिए. सो आई विल जस्ट इंसर्ट अ न्यू कॉलम ओवर देयर. हम कहाँ से करेंगे स्टूडेंट्स, हम जाएंगे इंसर्ट के अंदर. आई टोल्ड यू अबाउट कि हमें कैसे इसको करना है, मैंने आपको बताया था. सो वी विल बी गोइंग टू लेआउट. लेआउट के अंदर यहाँ पे हमारी इंसर्ट है, इंसर्ट राइट. इंसर्ट राइट हमें एक चाहिए पूरा एंटायर रोज़ और कॉलम्स. सो हमने कर दिया इंसर्ट राइट. हमारा एक यहाँ पे इंसर्ट हो गया. मैंने यहाँ पे लिख दिया टोटल. सो बट आई हैव टू डू नाउ इज़
मेरे को इन तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करने हैं of 2 students and I will make the total over there. So I will take 2 students over there. First one is, I am assuming the name Neha and Praj. So I have assumed 2 students and I am writing the marks just randomly. I am picking it up 78, 67 and 89. And here again of Prachi I am resuming it. कुछ भी हम ले सकते हैं, 82, 76 and 76 again. So these are the marks I have entered for 2 students. This is I am showing you table बनाया हमने, उसके अंदर हमने रोज एंड कॉलम्स लिया, हमने सीरियल नंबर 1 2 नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और यहाँ पे टोटल का कॉलम बनाया. अब मैं टोटल कैसे करूँगी, जिस सेल में मुझे चाहिए टोटल वहाँ जाके मैं क्लिक करूँगी. लेआउट टैब में ही एक है यहाँ पे फॉर्मूला पे हम क्लिक करेंगे. ये डेटा ग्रुप में आप देख रहे हो यहाँ पे डेटा ग्रुप है. सो डेटा ग्रुप के अंदर फॉर्मूला पे मैं क्लिक करूँगी and it is showing is equal to sum left. It means कि हमें sum कहाँ पे चाहिए. So हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे, sum left मतलब कहाँ चाहिए मुझे, उससे आगे चाहिए. So it is showing ऑटोमेटिकली इट इज़ देयर. हमने यहाँ पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये इन तीनों का जो है टोटल दे रहा है. सो कहाँ से जाके हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ से जाके इट इज़ ऑटोमेटिकली शोइंग. तो हमें सिर्फ ओके पे क्लिक करना है एंड आवर फॉर्मूला विल बी देयर. अब मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँगी तो माई फॉर्मूला विल कम टू दिस सेक्शन. सॉरी. So students, formula and click and 234. Now they are showing इन दोनों सेल्स में 234 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इनका और इनका दोनों का सम जो है 234 है. इसके लिए हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस करने होंगे जिससे कि ये हमें यहाँ पे अपडेटेड दिखाए. मैंने यहाँ पे 89 दिखाया. अब अगेन आई विल पुट फॉर्मूला ओवर देयर एंड I need to update it. So students, मैंने यहाँ पे इसको अपडेट कर दिया है. बट वन थिंग इज़ देयर, यहाँ पे अबव दिखा रहा है. बट आई हैव टू डू इज़, मुझे यहाँ से चेंज करके फिर से इसको लेफ़्ट करना होगा. द रीज़न बिहाइंड लेफ़्ट करने के, क्योंकि ये क्या करता है, आपसे पूछ रहा है कि आपके जो सेल्स हैं लेफ़्ट पे आपको उनका सम करना है. ओके. सो इट इज़ आस्किंग फ्रॉम मी कि मेरे को यहाँ पे अबव का मतलब हो जाएगा कि मेरे ऊपर वाले जो सेल है, ऊपर वाले सेल में 234 है. अगर मैं इसको अबव करूँगी तो ये मुझे 234 ही शो कर देगा. लेकिन मुझे क्या करना है, जो लेफ़्ट वाले सेल है उनका सम चाहिए. तो मुझे यहाँ पे फॉर्मूला जो है चेंज करना पड़ेगा. फॉर्मूला के अंदर यहाँ पे अबव की जगह आई नीड टू राइट इट ओवर देयर लेफ़्ट. मुझे क्या लिखना पड़ेगा, लेफ़्ट. सो लेफ़्ट लिखने के बाद व्हेन आई विल क्लिक ओवर देयर इट विल अपडेट इट. सो ये हमसे पूछता है कि हमें कौन से सेल्स का जो है करना है. आई कैन शो यू वन एंड अदर. स्टूडेंट्स, लेआउट में हम गए, मैं एक सेल फिर से और नीचे इंसर्ट बिलो कर रही हूँ. सो बिलो I have inserted 2 rows over there. Here I am writing 3 and here I am writing 4 and here I am writing Sheetal, student name Sheetal, and here I am writing Pooja, and here I am writing marks 78, 65, 62 and 87 and 89. So these are the again marks I have entered, as you can see.
अब फिर से हम वही चीज़ करेंगे. आई विल मूव टू द सेल एंड फॉर्मूला. लेकिन अगर मैं अब सम अबव लगाऊंगी तो ये क्या करेगा, 233, 234 और 247 का सम करेगा. इट इज़ 481. लेकिन अगर मैं अपने लेफ्ट वाले सेल्स का सम करना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना होगा, फॉर्मूला में जाके आई नीड टू चेंज, यहाँ से अबव की जगह मुझे लेफ्ट करना होगा. देन ओनली इट विल टेक द लेफ्ट सेल्स फॉर द. सो आई हैव चेंज इट ओवर देयर. एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे लेफ्ट किया एंड ओके. नाउ इट इज़ टेकिंग माई लेफ्ट सेल एंड एडिंग इट. इनको प्लस कर रहा है. अगेन आई एम रिपीटिंग इट देयर. फॉर्मूला के अंदर मैं गई एंड मैंने यहाँ से इसको लेफ्ट किया. सो नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन ओके. लेकिन अगर मैं अबव रहने देती तो मेरे ऊपर वाले तीनों सेल्स को कैलकुलेट करता. दिस इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट द numbers in the cell. So this is how table works. Exactly जो टेबल वर्क करता है ऐसे वर्क करता है और ऐसे ही बनाना होता है. एंड आप अब इसके अंदर कोई भी कैलकुलेशंस कर सकते हो. इट विल बी ईजी फॉर यू. अभी आपके मार्क्स जब आएंगे, पेपर होंगे, पेपर होने के बाद आपको बहुत आसानी से अगर कैलकुलेशन करनी है कि किसके कितने मार्क्स आए हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हो एंड इट विल वर्क फॉर यू. एंड स्टूडेंट विद दिस वी हैव डन दिस चैप्टर. हम ये चैप्टर कर चुके हैं. आई विल सेंड यू द क्वेश्चन आंसर्स. यू कैन राइट इट फ्रॉम देयर एंड definitely if any problem is there you can call me, contact me. I will reply to you. And till the time as your vacations are going to start, so in these vacations I'll send you the holidays homework as well, but obviously you have to complete the work if it is pending till now. And we will meet after like holidays which you are having after your summer break. We will meet. Definitely I'll miss you students, but we will meet now after holidays. And in between if you feel like any problem, any query in understanding or in learning or any kind of problem you feel, you can call me anytime during vacations as well. I'm all time available for you. For your problems I'll solve it. So students, bye. We will meet now after vacations.